So good morning, everyone. So let us start today's session. Okay, we'll discuss trigonometric Fourier series. Already we have started Fourier series, discrete time Fourier series. So we have done so many numerical problems based on complex exponential Fourier series. So today we'll discuss about trigonometric Fourier series. Okay, that means sine cosine. So So trigonometric Fourier series basically consist of your sine terms and cosine terms. Okay, so there should have sine terms, there should have some cosine terms. With that, your the coefficient at the origin, that is a0. Okay, so that's why I have written over there. You can think of that. Uh, xt is equal to xt is your time varying quantity, that should be written as a0 plus cosine terms plus sine terms. Okay, so a0 that is the basically your at the origin value, and see here for cos terms a n cos n omega naught t, where omega naught t where omega naught is basically your fundamental frequency. So that is your cos term. So summation over n is equal to 1 to infinity a n. So a n is the coefficient, another coefficient for cos term. And the second term, that is for the sine terms, n is equal to 1 to infinity bn sine n omega naught t, where omega naught is the fundamental frequency. So that is called trigonometric Fourier series. Okay. So we know that xt is equal to, what do we know that xt is equal to k is equal to minus infinity to plus infinity ak
e to the power j k omega naught t. That is called exponential Fourier series. Okay, xt is equal to k is equal to minus infinity to plus infinity ak is the coefficient of the Fourier series e to the power j k omega naught t. That is called exponential Fourier series. We know that. So xt is equal to, now as we have written over previously, xt is equal to a naught plus n is equal to 1 to infinity an cos n omega naught t plus n is equal to 1 to infinity bn sin omega naught n omega naught t. So that is for sine term, this is for cos term, and this is for your origin terms. So n equals 0. Now, what do you do? Now we are expanding this form. We are expanding this form. So, okay, let us see what will happen. So a0 is there. So you take value of n is equal to 1 here. So ultimately a1 will be there. a1 cos omega naught t, because value of n is 1 here. Similarly, if the value of n is equal to 2, then it should be a2 cos twice omega naught t. So that's why a2 cos twice omega naught t. Now take the value of n is equal to 3. So that's why you will have a3, and value of n is 3 here. So a3 cos 3 omega naught t. So in that way, it will move on. It will goes on. Now, somewhere there is a value is n, so that will an cos n omega naught t. That is whole about your omega naught term, cos omega naught term. Now the terms for the sine terms. What will happen? The value of n is 1. So b1 sine omega naught t. b1 sine omega naught t. N value is 2. So that should be b2 sine twice omega naught t. So in that way, it will move on and ultimately we get bn sine n omega naught t. So that is the expansion of this sine cosine Fourier series. So now you have to find out, okay, so basically you have to find out coefficient. What does mean? You have to find out the coefficient. That means a0, an and bn. These are the three coefficients for the sine cosine series Fourier series. So you have to find out a0 first, then we'll go for finding out an, then we'll go for finding out bn. So let us see how we are going to find out all these coefficients. So primarily we are going to find out a naught. So if you want to find out the value of a naught, then what will we do? So we will do integration. Okay, so integrating both sides, I've written over there. You have to integrate both sides. Okay, right side as well as the left sides. Correct. So integrating both sides with respect to t for one complete period, as you know, you have to integrate for a complete time period. That is 0 to t. So left side में क्या होगा? xt is there. So 0 to 2 xt dt. And the right side में क्या होगा? देखो a0 is there. So integration over 0 to t a0, that is a naught into dt. So for the first terms. Now let us see what will happen for the other term. Please listen carefully. What will you do? You are integrating as a whole, okay, within a time period 0 to t with respect to t. So you people know that, you are aware about that, for cos or sine for a particular time period, okay, your integral value will be 0. So cos omega naught t from 0 to t will vanish. Similarly, twice omega naught, thrice omega naught, and as well as the sine terms, all terms will vanish. Because you people know that if we integrate from 0 to t, any sine or cosine series, that will vanish. So ultimately, we'll get 0 values here, a1 into 0, a2 into 0, a3 into 0, in that way, b3 into 0, b4 into 0, bn into 0. All sine and cosine terms will vanish after integration from 0 to t. So that's why बचा हुआ term क्या है? Left में 0 to t xt dt, right side में only a naught 0 to t dt. All other terms are 0. So a0 is constant value. So a0 will come out at outside, and dt के लिए क्या होगा? t होगा. अपर लिमिट क्या है? t है. So ultimately we will get a0, that is a naught into t. So that is equal to 0 to t xt dt. So from there we have the value of a naught. So what is a naught? A naught is equal to 1 upon t 0 to t xt dt. Okay, because we know that
I'm explaining what why sine and cosine 0 to t sine n omega naught t dt is equal to 0. We know that. Okay, and also we know that sine theta into cos theta, if that sort of terms will come, and if we integrate 0 to t, then also that will vanish. Already we have done all these things in our previous classes. So that's why we have taken zero values, all the other terms, cos, all the cos terms, all the sine terms, that will vanish. Only remaining terms is 0 to a naught, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी dt. सो a naught के लिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है, और dt के लिए क्या होगा, t, एंड अपर लिमिट इज कैप्स t, सो दैट्स व्हाई a naught t, that is equal to 0 to t xt dt. So we got the first coefficient value a naught. Okay, so we got the a naught, and a naught nothing but 1 upon t 0 to t xt dt. That is the formula for finding out a naught. Correct. Now we're going to find out other coefficient, that is an and bn. So for finding out an, what will you do? Okay, so we'll multiply. देखो, multiplying equation 1, वो जो बड़ा वाला equation है, will multiply both sides with cos n omega naught t. What I am telling that? देखो, फिर से वापस आओ यहाँ पे. We are going to find out an. We are going to find out value of an. Okay, so पहले तुम क्या करोगे? You multiply both sides as a whole from left to right by what factor? By what factor? Cos n omega naught t. You multiply both sides, that is xt into cos n omega naught t, a naught into cos n omega naught t, n is equal to 1 into infinity n cos n omega naught t into cos n omega naught t, that is cos square n omega naught t हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, bn sin n omega naught t into cos n omega naught t. That will be the values. Okay, so ultimately what will happen? So that's why I am writing here, multiplying equation 1 both sides with cos n omega naught t and integrating with respect to time for 0 to t. तो सोचो क्या होगा, जैसे मैंने बोला, प्लीज लिसन केयरफुली. यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये sin थीटा cos थीटा हो जाएगा. तो जब इंटीग्रेट करोगे sin थीटा cos थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. a naught cos n omega naught t, ये भी 0 हो जाएगा, 0 to t, because cos factor will vanish. ना यहाँ पे क्या है, an into a cos square theta. So 2 cos square theta 1 plus cos 2 theta. You make it in that way because an cos square n omega naught t. तो देखो यहाँ पे all other terms are 0 right side में. देखो, so only remaining term left side में क्या होगा, 0 to t xt is multiplied with cos n omega naught t dt. So a0 भी खत्म हो गया, bn भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, only remaining portion is there 0 to t an into cos square n omega naught t dt, जैसे मैंने बोला. साइन टर्म भी 0 हो जाएगा, दैट इज bn के लिए वो टर्म खत्म हो जाएगा, a0 के लिए भी वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा. सो ए हाफ an करके ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, तुम लोग जानते हो, 1 प्लस cos थीटा होता है. सो दैट इज n ओमेगा नॉट t, सो 1 प्लस cos 2 थीटा, सो 2n ओमेगा नॉट t हो जाएगा. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे भी cos थीटा हो गया, तो ये भी वेनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो फॉर दैट वन यू आर हैविंग द वैल्यूज. सो हाफ n बाहर में होगा, 0 टू t ओनली dt होगा, ये टर्म रहेगा. इंटीग्रेशन के लिए इतना ही तुम्हारे पास है, हाफ an 0 टू t dt. तो dt के लिए t होगा, तो अपर लिमिट t है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, an डॉट t डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज योर an. सो हाउ टू गेट an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई t, राइट से लेफ्ट साइड में क्या है, 0 टू t xt cos n ओमेगा नॉट t dt. सो देखो an क्या निकल गया, 2 by t 0 to t xt cos n omega naught t dt. So that is your an. So देखो an निकालने में तुम क्या करोगे, I am coming here again. तो an के लिए तुम क्या करोगे, an का साथ में कौन वैल्यू है, cos n omega naught t है.
तो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में। ओके, सो ए एन वैल्यू निकल जाएगा जैसे मैंने हम किए हैं। सो फॉर बी एन के लिए तुम क्या करोगे, इन द सेम वे आई एम नॉट शोइंग यू। सो बी एन के लिए तुम क्या करोगे, बोथ साइड में साइन एन एन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई करोगे, देन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इन ए पीरियड 0 to t, विद इन द टाइम इंटरवल 0 to t। तो अब क्या होगा, साइन एन ओमेगा नॉट टी, ए जीरो साइन एन ओमेगा नॉट टी होगा, तो इंटीग्रेट होने से क्या हो जाएगा, वो वेनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी इनटू साइन एन ओमेगा नॉट टी, दैट आल्सो विल वेनिश, सो ए जीरो विल वेनिश, ए एन आल्सो विल वेनिश। यहाँ पे क्या होगा, बी एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टी, तो यहाँ भी टू हाफ लेके बी एन बाई टू करके टू साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। So similar way you will get the value of Bn is equal to, you do it at your home, Bn is equal to similarly हो जाएगा b 2 by t 0 to t x t sin n ओमेगा नॉट t जगह में क्या हो जाएगा, cos n ओमेगा नॉट t जगह में क्या हो जाएगा, sin n ओमेगा नॉट t into dt। So in that way we will find out all the coefficient, that is a naught, an and bn for the trigonometric Fourier series. So these are most important. Sometimes question may ask to find out, you will get the expression and you are asked to find out a0, an and bn. So in that way you got the formula and easily you can find out a0, an and bn. So तीन फॉर्मूला मैंने लिख दिया, an is equal to 2 by t 0 to t xt cos n omega naught t dt, and bn is equal to 2 by t 0 to t xt sin n omega naught t dt, and a naught के लिए 1 upon t 0 to t xt dt. So these are the formulas. Okay, so this is all about your coefficient for trigonometric Fourier series. Okay, now we will go for some symmetry property. Okay, we'll discuss some symmetry property. So पहला वाला जो है, that is called even symmetry signal. So you people know that what is even functions. You people know that x or minus t is equal to x. Nothing new about that. Okay, so मान लो यहाँ पे एक xt signal है in that way, that is 0, this is t1 and this middle may be t. Okay, and last class में हम लोग लिए थे this sort of waveform. So middle वाला t है, तो ये length t1 है, so middle से this तक ये t1 है, so that value will be t minus t1 or that value should be t plus t1. Okay, so this is t, so this mid portion should be 2t, in the similar way that is minus t1. Okay, this mid should be t minus t, so that is your xt. Okay, so now that is xt, now you take x or minus t, so time reversal हो जाएगा, isn't time reversal, so mirror image हो जाएगा, so origin सेम होगा, ये पार्ट लेफ्ट में जाएगा, इधर राइट में जाएगा, तो कोई तुम्हारा सर एक और बार रिपीट कीजिए सर, एक और बार रिपीट कीजिएगा सर इसको। अच्छा ठीक है, देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन है xt है, पहले भी हम लोग ये ले चुके हैं और अगला प्रीवियस जो क्लास था, तो ये तुम्हारा ओरिजिन है xt का वेव फॉर्म है, तो जीरो से ये ओरिजिन है, जीरो है, जीरो से ये लेंथ का t1 वैल्यू है और इधर माइनस t1 है, सो कुल मिलाकर ये हाफ हाफ पोर्शन है। ओके, सो दिस पोर्शन इज t1 एंड दिस पोर्शन इज माइनस t1, ये भी और एक पाल्स है। ओके, सो दिस पोर्शन इज t, ओके, फ्रॉम 0 to t, दिस इज योर टाइम पीरियड। ओके, दिस इज 0, दिस इज t, सो ये तुम्हारा टाइम पीरियड है। ओके, सो इफ इट इज t टाइम पीरियड t, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, t माइनस t1 हो जाएगा, क्योंकि दिस लेंथ इज t1, मैंने बोला ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये मिडिल मींस दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, हाफ मतलब दिस इज t1, दिस इज t1, द टोटल लेंथ इज 2t1। ओके, तो इसलिए दिस पॉइंट कितना होगा, t माइनस का ये t है, तो ये लेंथ कितना है, t1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस t1, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये t है, दिस लेंथ इज हाउ मच t1, तो ये दिस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, t प्लस t1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी दिस इज माइनस t1। ओके, सो दैट इज द टाइम पीरियड, माइनस सॉरी माइनस t1 नॉट, दिस इज
t minus t. Okay, this middle portion is minus t. So from this to this is the time period t length. From 0 to t, this is the time period. So this is your xt basically. Now we are converting is at x of minus t. तो x of minus t का मतलब क्या है? x of minus t means टाइम रिवर्सल होगा. टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है? मिरर इमेज लाइक फोल्डिंग सिस्टम. ओके, सो दैट मींस ये पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट में जो है वो राइट में चला जाएगा. लेकिन वो तो सेम ही है, बराबर तो सेम है, कोई फर्क नहीं है. इसलिए x of minus t is equal to xt. ओके, x of minus t जो है और xt दोनों जो वेव फॉर्म है, दोनों में से कोई फर्क नहीं है. ये में है, इसलिए मैंने बोला x of minus t equal to xt and that is called even symmetry. ये देखो xt x of minus t, ये क्या हो गया? ये वाला लेफ्ट में आ गया और ये जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया. लेकिन वेव फॉर्म सिमेट्री है. ठीक है, वेव फॉर्म सिमेट्री है. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है टाइम रिवर्सल करने के बाद. सो इसलिए दिस वेव फॉर्म इज कॉल्ड ट्रीटेड एज इवन सिमेट्री. नाउ वी हैव ऑड सिमेट्री. ऑड सिमेट्री में क्या होगा? वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव टर्म आ जाएगा. तो इवन सिमेट्री जब होगा वो जो ए नॉट है वो नॉन जीरो होगा. ए नॉट मीन्स द फंडामेंटल और जो ओरिजिन जो है उसका जो कोफिशिएंट है ए नॉट जीरो नहीं होगा. एंड यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होगा और प्लस माइनस 180 डिग्री होगा. लेटर वी टेक सम एग्जांपल. ये दिमाग में रखना है, ध्यान से रखो. ए नॉट शुड नॉट बी जीरो, नॉन जीरो होगा. और एंगल वो जो कोफिशिएंट का एंगल पार्ट होगा, फेज पार्ट होगा, वो 0 डिग्री होगा, आइदर 0 डिग्री और प्लस माइनस 180 डिग्री होगा. ओके, तो तुम लोग पोलर फॉर्म जानते हो. तो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? r डॉट e टू द पावर j थीटा. r बेसिकली योर एम्पलीट्यूड, थीटा इज योर फेज. सो इन दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. r इज योर मैग्नीट्यूड, थीटा इज योर फेज. फेज और मैग्नीट्यूड में हम लोग इस तरह डिवीजन कर सकते हैं. ओके, तो एक तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स होगा, एक दैट मींस कोफिशिएंट जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स होगा तो हम इस तरफ लिख सकते हैं. ये एम्पलीट्यूड है, ये r जैसे एम्पलीट्यूड, e टू द पावर j थीटा मींस रिप्रेजेंटिंग योर फेज. सो फेज, एंगल ak, सो मैग्नीट्यूड एंड एंगल. तो इन द पोलर फॉर्म व्हाट विल राइट दैट? मॉड ऑफ ak e टू द पावर j थीटा. जैसे तुम पोलर को लिखते हो r इंटू e टू द पावर j थीटा. r का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड. इसलिए r का जगह में हम लोग मॉड ऑफ ak लिख दिया और e टू द पावर j थीटा. So sometimes we may use this polar form also. So that is all about your even symmetry. Must go through all these things and remember these conditions. Now trigonometric Fourier series देखो, मैंने just derived an and bn का value. Just we have derived. a0 तो मैंने लिख दिया, a0 नॉन जीरो होगा, तो an bn क्या होगा? तो xt यहाँ पे क्या है बोलो? xt यहाँ पे इवन है. xt यहाँ पे इवन है. we have taken xt is even because xt is equal to x of minus t. So xt is even here. So even function into cos is also even function. So even into even. So ultimately even होगा. Okay, ultimately even होगा. So that will exist, an will exist. But यहाँ पे क्या होगा देखो, bn cos t even है but sin t odd है. So even into odd, odd हो जाएगा. So odd terms will vanish. So जब तुम्हारा even symmetry होगा, even symmetry, so even terms will exist. That means an will exist but bn will vanish. Okay, because xt itself even and sin t sin itself odd. So even into odd जब multiply होगा तो ultimately odd ही निकल जाएगा. So that will be zero. So for even symmetry के लिए remember करो, a नॉट नॉन जीरो होगा, a n नॉन जीरो होगा और b n जीरो हो जाएगा. So that is your properties. Okay, even symmetry. Now odd symmetry. Odd symmetry, odd function क्या है? x of minus t is equal to minus xt होने से that is called odd symmetry. So we have taken one example here, xt here. See, this sort of. This is 0, this is t by 2, this is t. So from 0 to t, this is your time period. इधर भी देखो, this is 0, this is minus t, this is your time period. तो ये देखो
दैट इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन ऑल्सो नेगेटिव होगा। इधर इधर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दैट मीन्स क्या है, एक्स टी, एक्स ऑफ माइनस टी, देखो एक्स माइनस ऑफ एक्स टी है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो क्या है, ये नेगेटिव हो गया, बॉटम में हो गया, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ऑड सिमेट्री। ओके, देखो एक्स ऑफ माइनस से हम फाइंड आउट किए हैं, ये है तुम्हारा एक्स टी वैल्यू। ओके, नाउ एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी। ओके, सो दैट मीन्स टाइम रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, टाइम रिवर्सल हो जाएगा। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या है, बोलो, मैंने बोला जस्ट मिरर इमेज, ये पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ओके, ये है टाइम रिवर्सल। तो 0 से t/2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम रिवर्सल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो, सिंपली फ्रॉम एक्स टी वी कैन हैव दैट आइडिया। यहाँ पे देखो ना, पॉजिटिव है, ठीक है, t/2 में, एक्स ऑफ t/2 में पॉजिटिव है, बट माइनस t/2 में ये नेगेटिव है, तो ये होल्ड हो गया, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। सो ये ऑड सिमेट्री होगा, ठीक है। तो ऑड सिमेट्री, जैसे तुम्हारा साइन इज योर ऑड फंक्शन, तो जब ऑड सिमेट्री होगा तब कंडीशन क्या है, फॉर ऑड सिमेट्री के सिग्नल के लिए ए नॉट 0 हो जाएगा, बट इवन सिमेट्री में हमें क्या बोला, ए नॉट नॉट इज इक्वल टू 0, और एंगल वहां पे क्या था, 0 होगा और प्लस माइनस 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 90 डिग्री होगा। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फूरियर एन एंड बी एन के लिए क्या होगा, बोलो, एन के लिए क्या होगा, एक्स टी इटसेल्फ ऑड फंक्शन, कॉस इट्स इवन फंक्शन, सो ऑड इनटू इवन, ऑड हो जाएगा, सो ए एन विल वैनिश हियर। ओके, ए एन इज वैनिश्ड हियर, बट यहाँ पे देखो बी एन इज इक्वल टू 2/t 0 to t एक्स टी इटसेल्फ ऑड एंड साइन आल्सो ऑड, सो ऑड इनटू ऑड इवन हो जाएगा, सो बी एन विल एग्जिस्ट हियर। सो ऑड सिमेट्री के लिए क्या क्या कंडीशन है, ए नॉट बी 0, ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए एन इज इक्वल टू 0, बट बी एन इज इक्वल टू नॉन 0। सो दिस इज योर ऑड सिमेट्री सिग्नल। ओके, so that is your odd symmetry signal. Now the half wave symmetry. Okay, half wave symmetry. What is half wave symmetry? So half means we'll make half the time period. If capacity is the time period, so we'll make it t/2. So इसलिए क्या होगा, देखो xt is your original function. So x of t plus minus t/2 advance or delay, if you make half amount, half of the time period. तो जैसे मान लो इफ एक्स ऑफ टी प्लस t/2 और एक्स ऑफ t माइनस t/2, that will give you minus xt. Okay, that will give you minus xt. If that so happen, then we say that it's a half wave symmetry. So let us take one example to make you understand. देखो ये तुम्हारा xt है, that is your xt is your wave form. So देखो 0 स्टार्ट है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन दैट विल मूव ऑन। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सो इधर नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव होगा। एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस है माइनस है। ओके, नाउ विल शिफ्ट, देखो एक्स ऑफ टी प्लस t/2, सो दैट मीन्स क्या होगा, ये एडवांस हो जाएगा, मीन्स ये लेट में चला जाएगा। हाउ मच अमाउंट, t/2 अमाउंट, तो दैट मीन्स क्या होगा, देखो ये जो पोर्शन है, ये जो है 0 to t/2, सो दैट विल मूव टू दिस, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ये वाला ये वेव फॉर्म इधर चला आएगा। तो ये जो है 0 to t/t इधर है, देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आ जाएगा, 0 to minus t/2 में, 0 to minus t/2 में चला जाएगा। दैट मीन्स एज ए होल वेव फॉर्म्स विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, हाउ मच अमाउंट, t/t अमाउंट। तो 0 to t/2 ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा 0 to t/2 में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, होगा कि नहीं, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा, देखो मैंने ये छोटा करके देखो, तो ये जो इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, क्या होगा, तो ये जो
यहाँ पे देखो t/2 से t तक क्या है, ये नेगेटिव है, लेकिन 0 to t/2 क्या है, पॉजिटिव है। नाउ यू आर शिफ्टिंग लेफ्ट साइड, हाउ मच लेंथ, t/2 अमाउंट। तो ये जो t/2 है ये 0 में आ जाएगा, और ये जो t में है वो t/2 में चला जाएगा। So ultimately it will looks like that. ये जो पोर्शन है that portion will come to 0 to t/2. So 0 to t/2 में ये नेगेटिव हो गया, और 0 टू माइनस t/2 में देखो पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, 0 टू माइनस t/2 में नेगेटिव था, बदले में यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो दैट इज योर शिफ्टिंग ऑफ x ऑफ t प्लस t/2। जैसे मान लो यहाँ पे जो वेव फॉर्म है, तुम यो राइट साइड में t/2 अमाउंट शिफ्ट करोगे भी तो सेम ही होगा, सेम वेव फॉर्म ही होगा, दिस नेचर की होगा। तो इसलिए x ऑफ t प्लस t/2 और x ऑफ t माइनस t, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ xt हो जाएगा। वाई इज माइनस ऑफ xt, ये दो वेव फॉर्म में कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो xt जब यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, हुआ कि नहीं। तो इसलिए माइनस 60 हो जाएगा। xt और x ऑफ t प्लस t/2 में क्या रिलेशन है, माइनस 60 है। तो इसलिए मैंने लिखा x ऑफ xt तुम्हारे पास है, तुम प्लस माइनस t/2 शिफ्ट करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, सिग्नल का नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। वाई इट इज सो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मींस फेज शिफ्ट हो गया, ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। सो दैट इज योर माइनस 60। Okay, so that is called the half wave symmetry. Half wave symmetry, why it is half? Because if you make the time period half, then there is a symmetric nature. Okay, so that is called half wave symmetry. तो यहाँ पे क्या है, हाफ वेव सिमेट्री में ए नॉट बी जीरो, ए के शुड बी जीरो फॉर के इज इक्वल टू इवन वैल्यूज। ओके, सो ए के इज जीरो फॉर के इवन एंड ए के नॉट बी जीरो फॉर ऑड वैल्यूज। So these are the conditions. Okay, you must remember all these things. दिमाग में ये रखना है। So one more thing is that property number 4 symmetry के लिए, that is called even plus half wave symmetry. Even means mixture. Even symmetry है और half wave symmetry है। That means t/2 t plus minus t/2 भी है और even symmetry है। That is x of minus even symmetry का मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा x of minus t इसके लिए xt होगा, और हाफ वेव सिमेट्री के लिए क्या होगा, जैसे मैंने बोला x of t प्लस माइनस t/2 x of minus t होगा। ये दोनों कंडीशन होल्ड होगा, देन दैट इज कॉल्ड इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। जैसे मान लो cos ओमेगा नॉट t, cos फंक्शन है, तो cos फंक्शन देखने में क्या है, यही है, cos फंक्शन देखने में यही है, ठीक है। तो cos फंक्शन तुम जानते हो, cos फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। सो x of minus t प्लस t ये होल्ड करेगा ना। हम लोग देखेंगे ये हाफ वेव सिमेट्री हो रहा है कि नहीं। सो मैंने क्या बोला, हाफ वेव सिमेट्री के लिए तुमको वेव फॉर्म को xt जो है उसको प्लस t/2 लेफ्ट में शिफ्ट करना है और राइट में t/2 शिफ्ट करना है, ठीक है। तो x of t minus t/2, that means you are shifting this series to right side, राइट साइड में कितना वैल्यू, t/2 हाफ अमाउंट मैंने बोला, हाफ सिमेट्री है। सो वेव फॉर्म जो है उसका हाफ हो जाएगा। तो देखो ये जो है जीरो है, ठीक है, ये तुम्हारा टाइम पीरियड t है, तो ये t/2 हो जाएगा। तो ये जब शिफ्ट होगा t/2 तो क्या होगा, जीरो में जो पीक है वो t/2 में पीक हो जाएगा, दैट इज इट इज शिफ्टेड हाउ मच, t/2 अमाउंट। तो ये जो है ये पीक t/2 में आ जाएगा। देखो ये जीरो में पीक था, देखो ये क्या होगा, शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और टी में पॉजिटिव हाफ था, टी में नेगेटिव हाफ हो गया, तो ये हाफ ऑफ सिमेट्री हो गया। दैट इज एक्स ऑफ टी, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो एक्स ऑफ टी माइनस t/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 60 हो गया कि नहीं। एक्स ऑफ टी माइनस t/2 इज इक्वल टू माइनस 60। तो एक्स ऑफ टी प्लस माइनस t/2 जब माइनस 60 होगा, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री। तो देखो ये जीरो में पॉजिटिव था, जीरो में नेगेटिव हो गया, t/2 में नेगेटिव था, t/2 में पॉजिटिव हो गया। सो दैट मीन्स क्या हो गया, जो यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, जो यहाँ पे नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस t/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ xt। ओके, माइनस ऑफ xt। ओके,
सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया. सो दैट इफ दैट सो हैपन देन इट्स कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री. तो ये कॉस फंक्शन में क्या है, दोनों एग्जिस्ट है, इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री. इवन भी है एंड हाफ वेव सिमेट्री भी एग्जिस्ट होता है. तो इसलिए x माइनस टी इक्वल x t एंड x ऑफ t प्लस माइनस t बाई t इक्वल माइनस ऑफ x t. दैट इज कॉल्ड इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री. So in that case, what will happen? A0 should be 0 and AK should be 0 for K is equal to even. And phase shift क्या होगा 180 डिग्री. जैसे मैंने बोला माइनस x of t plus minus t by 2 is equal to minus 60. So that means between xt and minus 60 में कितना फेज का फर्क है 180 डिग्री. ठीक है. Why it is? Because यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है. तो हाउ मच फेज 180 डिग्री फेज शिफ्ट. सो जैसे मैंने वेव फॉर्म में है दिखाया वैसे प्लस माइनस 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा. सो ए नॉट 0 होगा, रिमेंबर फेज प्लस माइनस 180 डिग्री है, और ए के 0 होगा फॉर फेज के इवन. सो दैट इज योर इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री. सिमिलरली यहाँ पे भी ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री भी एग्जिस्ट होता है. तो ऑड मीन्स x माइनस टी इक्वल माइनस 60 होगा, और हाफ वेव सिमेट्री तो मैंने बहुत बार डिस्कस की है, x ऑफ t प्लस माइनस t बाई 2 माइनस 60 होगा. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, a0 नॉट 0 था, यहाँ पे भी a0 इक्वल 0 है, a के इक्वल 0 था फॉर k इक्वल इवन, यहाँ पे भी a के इक्वल 0 फॉर k इक्वल इवन. बट यहाँ फेज शिफ्ट क्या है प्लस माइनस 180 डिग्री है, लेकिन ऑड सिमेट्री में, ऑड एंड हाफ वेव सिमेट्री में a के दैट इज फेज शिफ्ट प्लस माइनस 180 डिग्री. दैट इज द डिफरेंस, but nothing more than that. So that is about your odd plus half wave symmetry. These are very simple, that's why I am moving very fast. So now the hidden symmetry. Now the last one is your hidden symmetry. Hidden symmetry क्या है? Apparently by looking the waveform you will not be able to find out is there any symmetry or not. So hidden symmetry, that is called hidden symmetry. By naked eye I can't understand directly whether it is symmetry find or not. तो देखो ये जो वेवफॉर्म है xt हम ले लिया 0 to t by 2 that is t that is 3t by 2 that is minus t by 2 that is minus t. That is the waveform and the amplitude is 2. Amplitude is 2. तो देखो 100 minus t xt है क्या? नहीं होगा. 100 that means we can't say it's a even symmetry. Okay. Then 100 minus t minus 60 ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. 100 minus t that means if you take mirror image then so will not be equal. 100 minus t is equal to minus of xt. और हाफ वेव सिमेट्री भी नहीं एग्जिस्ट होता है यहाँ पे. x of t plus minus t by 2 minus 60 that is also not called. So not, this is not the even symmetry, this is not the odd symmetry, this is not the half wave symmetry. Okay. तो क्या है xt तुम्हारे पास है, ये xt है, तो हम क्या करेंगे xt माइनस 1 करेंगे, xt माइनस 1 करेंगे. ठीक है. तो xt माइनस 1 होगा, क्या होगा 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, और जो 0 है वो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा. 2 माइनस 1 क्या होगा एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा, और जिस जगह में 0 है 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. तो देखो ये 2 है तो ये प्लस 1 हो गया, ये 0 है तो माइनस 1 हो गया, ये प्लस 2 है ये प्लस 1 हो गया है, यह 0 है तो नेगेटिव हो गया. इधर भी देखो ये 0 है तो नेगेटिव हो गया,